اچھا حکیم صاحب نے آ کر جو ہے بڑے جوش میں ادھر ادھر ہاتھ پیر بڑے مارے ہیں، پر بات بوت کوئی نہیں کی انہوں نے۔ اب آپ کو ٹائم خیر اس طرح کا ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ ساری باتوں کے جوابات اس میں نہیں دیے جا سکتے، وہ تو یہ بھی نہیں دے پائیں گے، پہلے بھی نہیں دیے انہوں نے کسی بات کا جواب۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر کہتے ہیں حواس باختہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ جی پولس رسول جو ہے جب وہ یسوع کے شاگردوں کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ کی بات کرتا تھا، جب غیر قوموں کے ساتھ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ کیے، اتنے وثوق سے بات کر رہے ہیں جیسے پولس رسول کے ساتھ پھرتے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، چیک کریں، کانفیڈنس چیک کریں ان کا ذرا۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی جو خطا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھول چوک ہو جانا۔ سورہ قصص 28 نمبر جو سورت ہے اس کی 8 نمبر آیت میں لکھا ہے، یہ فرعون کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ آگے ان کی سزا کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈبو دیا گیا۔ یہ لیں جی، یہ پکڑیں، خطا چھوٹی سی کوئی بھول چوک ہوتی ہے، اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ فرعون کو ڈبو ہی دیا اللہ نے۔ یہ ان کی تفسیر ہے۔ دوسری بات زنبی کا جو مجھے آپ نے رکوایا حکیم صاحب، مجھے آپ نے رکوایا، ہاں جی اچھا، زنبی کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی میں 5 لغات کے نام بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو جی ان کو نا ورلڈ کپ ملنا چاہیے، پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے جتنے تراجم ہوئے سارے مسلمانوں کے ہیں۔ یہ معجم القرآن جو ہے سید فضل الرحمان کی اہل حدیثوں کی ہے، حتیٰ کہ ان کا اپنا سعودی عرب سے کہتے ہیں نا عرب والوں کی، ادھر سے سعودی عرب سے چھپ کے آیا، اس میں سے بھی جو ترجمہ اس کا گناہ ہوا ہے انہوں نے ساروں کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا ہے اور اوپر سے گزر گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں چلا جو قیامت تک جو ہے وہ ثابت کر سکے۔ اور بھائی ثابت تو آپ نے کرنا تھا کہ اس کا ترجمہ زنبیکا کا گناہ نہیں کوئی اور ہے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ الٹا کر تنقید کرتے رہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا لغت کا حوالہ دے کر بتاتے کہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ میں نیچے سے بیٹھ کر جب انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہا بھی ہے میں نے کہ بتائیں پھر کیا ترجمہ ہے، وہ نہیں انہوں نے بتایا، تو اپنا جو ہے آگے یہ شور شور ڈالتے رہے ہیں۔ اچھا ہاں جی، ہاں اس کو بھی انہوں نے خلاصہ کہہ دیا، بلے بھائی تیرے ہیں، یہ کہتے ہوتے ہیں نا اسے۔ اور انہوں نے کیا بائبل پڑھانی ہے؟ یہ تو آج میرے سے اسلام سیکھ کر جا رہے ہیں، انہوں نے کیا بائبل پڑھانی ہے ہمیں؟ اچھا جی اب چلتے ہیں ان کے جو ابتدائی سارے تھے اعتراضات۔ ہاں داؤد کے متعلق جو میں بات کر رہا تھا، میں نے بائبل سے آپ کو بتایا، سورہ سواد 38 نمبر سورہ 21 سے 24 نمبر آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی، جب کہ وہ وہاں پر ناتن آتا ہے داؤد کے پاس اور ساری بات اس سے کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جب کہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے، جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے پس وہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم 2 فریقے مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجیے۔ 2 بندے آئے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان مقدمہ چل رہا ہے، آپ ہمارا حق کا جو ہے وہ حق کے ساتھ انصاف کر دیں۔ یہ میرا بھائی ہے، ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھ کو دے دے، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے۔ جس نے ایک دمبی بھی جس کے پاس تھی، غریب تھا، اس کی دمبی ہتھیالی، اس کو ظالم کہہ رہے ہیں حضرت داؤد۔ آگے کیا لکھا سنیں، ظالم جو ہوتا ہے گناہ گار نہیں ہوتا وہ، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد کو اللہ کہہ رہے ہیں حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے۔ جب یہ ادھر ناتن جب آتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے بارے میں ہی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے اور داؤد کو پھر وہ معافی مانگتا ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو پھر حضرت داؤد کو سمجھ آ جاتی ہے او ہو یہ تو معاملہ ہی وہ والا ہے پھر، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ اب داؤد کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے جس نے یہ کیا ہے،
تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو پھر اس طرح سے میں ہی ظالم ہوں، تو پھر انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے پھر رجوع کیا، آ کے انہوں نے پتہ بعد میں کیا کہہ دینا ہے، نہیں بس اسے رہنے دیں۔ اچھا، در منصور میں اس کی تفسیر ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا واقعہ وہ عورت والا تھا۔ انہوں نے آ کے پھر کہہ دینا او یہ تو آپ خیانت کر رہے ہیں، یہ تو آپ اپنے سے آپ نے بنائی ہے، حالانکہ صحیح اگر صحیح وہ ہوتا ہے جس کو آپ ثابت کر سکیں۔ جیسا میں اگر قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ادھر یہ لکھا ہے، یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات چیک کریں۔ جو استدلال میں نے دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، یہ کہیں گے یہ تو آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں۔ تو بھائی جو صحیح آپ جس کو صحیح کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت تو دیں کہاں سے اٹھائی ہے، یہ تو دل سے نکال کے منہ پر لے آتے ہیں آپ، اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ ایویں ہم مان لیں، آپ نے کہا تو ہم مان لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، انہوں نے پھر جو یہودا کی بہو والا جو انہوں نے بات کی کہ جی اس سے جو ہے وہ فارس پیدا ہوا، اور فارس جو ہے وہ اس سے پہلے بلکہ یہودیوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی اس کا ثبوت جو ہے، یہودی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں چھوڑتے، خدا کو نہیں چھوڑتے، تو نبیوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس کے 18 باب اس کی 25 آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند کی روش جو ہے وہ راست نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، بالکل نہیں ان کو پتہ، کیونکہ یہ کس بات سے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ خداوند کی اگر توہین کر رہے ہیں تو نبیوں کی بھی کرتے ہوں گے۔ وہاں پر بات ہی اور ہو رہی ہے، پورا باب پڑھیں، وہ میں نہیں آپ کو پڑھانا ہے، اب آپ گھر جا کے پڑھیں گے، آج ہو سکتا ہے ادھر پیچھے بیٹھے بیٹھی پڑھ لیں۔ اب وہاں پر جو ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو بیٹا جتنا مرضی راست باز ہے اس کے گناہ کا صلہ جو ہے، مطلب کسی نے کرائم کیا ہے، یہ سماجی شریعت کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کے بیٹے کو بھی ملنی چاہیے۔ خدا کہتا ہے ایسے نہیں ہوگا، اگر کوئی شخص راست باز ہے اور وہ راست بازی سے زندگی گزارتا ہے تو وہ اس کا اجر پائے گا، لیکن اگر اس کا بیٹا ہے جو آگے وہ راست بازی سے زندگی نہیں گزارتا بلکہ گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ابھی جس نے زندگی گناہ میں گزاری، اگر آگے اس کا بیٹا ہے جو راست بازی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو راست بازی کے مطابق اس کی جزا ملے گی، یہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہودی کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ والا قانون ٹھیک نہیں ہے، تو اس سینس میں یہودی کہتے ہیں کہ خدا کی جو روش ہے وہ پاک نہیں ہے۔ انگریزی میں جو ترجمہ ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی جو ججمنٹ ہے اس حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے، ان کو خواہ مخواہ کھینچ تان کے جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ جی یہ نبی اللہ کو نہیں چھوڑ دے تو نبیوں کو کہاں سے چھوڑیں گے۔ اتنی کو آتی ہے ان کو بائبل، انہوں نے بائبل سکھانی ہے ہمیں۔ اچھا، ان کا بڑا زور تھا اس بات پہ کہ پھر انسان، ایوب 25:4 کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ اور یسوع جی کس سے پیدا ہوا تھا؟ عورت سے، آپ خود کہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح چونکہ دو باتیں کرتے ہیں، یسوع مسیح چونکہ انسان تھا، اور انہوں نے پھر وہ حوالہ بھی جب میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں پر ہے، پہلا تموتھیوس 2 باب 5 سے 6 آیت، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا وہ انسان تھا اور پھر وہ عورت سے بھی پیدا ہوا۔ اچھا، پھر جو ہم جواب دیتے ہیں نا، جو کہ درست جواب ہے، اور میں بتاؤں گا کیوں درست ہے، ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے نا کہ جو عورت سے پیدا ہوا، یہاں پر کل نسل انسانی کی بات ہو رہی، کیونکہ ساری عورت سے پیدا ہوتے ہیں، ساری عورت سے، تو یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ عام معنوں میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ کیوں کر پاک ٹھہر سکتا ہے۔ اب ہر کوئی عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے، اب حکیم صاحب مرد سے پیدا ہوئے ہوں تو اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، البتہ ہر کوئی عورت سے پیدا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ہماری تفسیر کیوں درست ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسی حوالے کے اندر۔ اس کو پورا پڑھیں گے، دکھائیں جی ذرا، یہ بائبل دے دیں، بس آپ بائبل دے دیں۔ بائبل دے دیں، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ لیں جی، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں ایوب والا حوالہ، سنیے گا۔ اور یہ ایک جگہ پر یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی عورت والی، عورت سے پیدا ہونے والی جو ہے نا، یہ 2 جگہ پر ہے، سنیے گا۔ چھوٹا سا باب ہے، میں ان کو جواب وہ بلدد سوکھی والا جواب نہیں دیتا، وہ ہے ہی نہیں ہمارا جواب، وہ نہیں دیتا۔ لکھا ہے تب بلدد سوکھی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے۔ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے، اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟
پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ اب ہماری جو تفسیر ہے کہ یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے، یہ بات ہو رہی ہے، وہ کیوں درست ہے؟ اس لیے کیونکہ آخری آیت میں یہاں پہ عورت سے پیدا ہونے والے کا ذکر ہے، اور آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر، یعنی کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جو سارے آدم ذات ہیں۔ اس کا مطلب یہ فرد واحد کے لیے، یسوع مسیح کے لیے آیت نہیں ہے، یہ زبردستی وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا، حکیم ثاقب نے کنبا جوڑا، اصل میں یہاں پر یہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ہمیں بائبل سکھانی ہے، ان کو ہم سکھا کر آج بھیجیں گے۔ میں نے جان بوجھ کے کہا تھا کہ تفسیر پڑھ دیں۔ یہ جو کیمرے میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جب ان کا پہلا استدلال سنیں گے، اور جو انہوں نے تفسیر الکتاب سے میتھیو ہنری کی پڑھی ہے نا، ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کی بات ٹکراتی ہے اپنی بات سے ہی۔ جنہوں نے پڑھا ہے وہ ان کا دعویٰ ہی نہیں تھا، اپنے دعوے کے خلاف ہی پڑھ گئے ہیں یہ۔ ہاں جی اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے۔ اب یہ سنیے ذرا 33 والا حوالہ، خدا انسان پہ جب بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ آگے سنیں، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ اب یہاں پر یہ جو مسیح ہے یہ انسان ہے، پہلے نمبر پر یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ محض انسان ہے۔ اگر محض انسان لکھا ہوتا تو پھر آپ کا دعویٰ قبول ہوتا، پھر آپ کی بات جو ہے اس کو قبول کیا جا سکتا تھا۔ برعکس اس کے جب آگے اگلی ہی آیت میں لکھا ہے، سیاق جو ہے سیاق و سباق، اس میں جب یہ لکھا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سب کے لیے فدیہ میں دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہے۔ کیسے؟ سنیں اب۔ زبور 49 7 سے 9 آیت اور پھر 14 سے 15 آیات میں لکھا ہے کہ ان میں سے یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ مطلب کوئی انسان اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، اپنے بھائی کا نہیں دے سکتا، سب انسانوں کو تو چھوڑیں، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے۔ تو پھر کون دے سکتا ہے فدیہ؟ سنیں اب 14ویں آیت سے، وہ گویا پتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی، دیانتدار صبح کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پتال کا لقمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا۔ 15ویں آیت، کون فدیہ دے سکتا ہے؟ لیکن خدا میری جان کو پتال کے اختیار سے چھڑائے گا، خدا ہی چھڑا سکتا ہے۔ تو اگر 5ویں آیت میں پہلے 33 کی دوسرے باب میں 5ویں آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح جو انسان ہے، تو اگلی آیت میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ فدیہ بھی دے رہا ہے اور سب کا دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا ہے پرانے عہد نامہ کے مطابق، کیونکہ خدا ہی صرف فدیہ دے سکتا ہے اور کوئی بھی فدیہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، پیڑے والی بات، اس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا، بڑی شدت سے انتظار تھا مجھے۔ انہوں نے کہا جی ایوب 14:4 میں لکھا ہے کہ نہ پاک چیز میں سے کوئی چیز پاک کیوں کر نکل سکتی ہے، اور پھر رومیو 11:16 میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندا ہوا آٹا بھی پاک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آٹا پاک ہے تو پیڑا بھی پاک، اگر آٹا ٹھیک نہیں تو پیڑا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ایسے کلابیں ملاتے ہیں نا آسمان زمین کے، کہ دیکھیں وہ فارس جو تھا، پہلے نمبر پر تو یہ بات سن لیں کہ آدم اور حوا جب خدا نے ان کو تخلیق کیا تو دنیا کیسے بڑھی؟ وہ جو انسیسٹ تھا اس کے ذریعے بڑھی، آپس میں بہن بھائی جو ہیں خونی رشتوں میں شادیاں ہوتی تھیں۔ اس کی ممانت کب ہوئی؟ موسوی شریعت میں۔ اس کے بعد سے یہ گناہ اس کو گناہ مانا جانے لگا۔ جو حرامزادے والی آیت ہے کہ حرامزادہ جو ہے خدا کی ہیکل میں 10 پشتوں تک نہیں بیٹھ سکتا، وہ موسوی شریعت کے اندر ہے، استثنا 23:2 میں ہے۔ یہ جو واقعہ یہودا کا، یہ پیدائش کی کتاب میں ہے، اور اس لیے فارس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور یہی سبب ہے کہ فارس یسوع مسیح کے نسب نامہ میں موجود ہوا ہے۔ اور اسی سبب سے یہ جو ساری کی ساری انہوں نے پیڑے والی بات کی نا، اس کا ملیامٹ ہو گیا ساری کی ساری بات کا، کیونکہ جڑ ہی ہم نے اکھاڑ کے پھینک دیا اس بات کی۔ ایک بات، اگلی بات سنیں۔ اگلی بات اس میں یہ ہے کہ یہ پیڑے کی بات کر رہے ہیں نا، 10 پشتوں پہ جانا دور، 10 پشتوں پہ جانا دور، یہ دکھائیں جی، ان کی اپنی کتاب بھی دکھائیں، ان کی اپنی کتاب بھی دکھائیں۔ اب دیکھیں اپنی کتاب سے کیسے بھاگتے ہیں یہ۔ 10 پشتوں سے تک جانا دور، 2-3 پشتوں کے اندر اندر یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ لے جی، ان کی اپنی کتاب ہے یہ، بائبل اور محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 15 لکھا ہے،
अरब का घर घर बुत कदा बना हुआ था। सितम ज़रीफ़ी ये कि जिस घर को इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खालिक कायनात की इबादत के लिए बनाया था वो घर नज़र बुतां हो गया। सहने काबा में 360 बुत थे, उसकी दीवारें तस्वीरों से मुनक्कश थीं। बड़ा बुत हबल काबा की छत पर नस्ब था। तहजीब व तमद्दन और तालीम के लिहाज से तमाम मुल्कों से पसमानदा इलाका यही था। माशरे के अदात व अतवार हलाकत आफनी थे और हर मखलूक की किसी न किसी रंग में पूजा की जाती थी। बुनियाद इनकी किताब अब सुने, सिरतुल नबी इब्ने हिशाम की जो है उसके अंदर क्या लिखा है। अब्दुल मतलब कौन थे पता है ना आप सबको? पैगम्बर इस्लाम के दादाजी थे। वो कौन थे? अब उन्होंने उनकी बात मानी और दरियाफ्त किया कि क्या तरीका अख्तियार किया जाए। अब्दुल मतलब ने कहा कि तुम में का हर शख्स एक एक तीर ले और उस पर अपना नाम लिखकर मेरे पास लाए। उन्होंने ऐसा ही किया और अब्दुल मतलब के पास आए। अब्दुल मतलब उन्हें लेकर काबा अल्लाह के अंदर हबल के पास आए। काबा अल्लाह के अंदर हबल के पास आए और हबल काबा अंदर एक बावली पर था और ये बावली वो थी जिस पर काबा अल्लाह की नज़र व न्याज में जो जो चीज़ें आई वहाँ जमा रहती थीं। और हबल के पास 7 तीर रखे थे। ये सारा वाक़या जो पैगम्बर इस्लाम के दादाजी ने मन्नत मांगी थी और वो उनके जो वालिद साहब हैं उनके नाम पे निकली थी, इन्होंने बात की थी। अब यहाँ पर हबल को जो 360 बुत इनकी अपनी किताब के मुताबिक नसब थे और ये हयात मोहम्मद के अंदर भी ये सारी बात लिखी हुई है। ठीक है जी। तो इन्होंने बात की थी आटा ना साफ़ हो तो पेड़ा भी नहीं साफ़ होता। ये है जी आटा और इसमें से निकाल लें आप पेड़ा। 10 पुश्तों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, 2 पुश्तों में ही मैंने आपको सारा काम दिखा दिया। निकाल लें अब पेड़ा इसमें से। इन्होंने कहा जी यूहन्ना गुनाहों से माफ़ी का बपतिस्मा देता था, यीशु मसीह ने वो बपतिस्मा लिया, अगर वो बेगना होते तो बपतिस्मा ना लेते। पहली बात ये है कि आप देख लें यूहन्ना के पास जब मत्ती की अंजील 3 बाब 4 से 17 आयत में खुदा यीशु मसीह आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो तुझसे खुद तेरे से बपतिस्मा लेने का जो है मोहताज हूँ। इसका मतलब पता है क्या है कि अच्छा अब जब यूहन्ना इस्तबागी गुनाहों से माफ़ी का बपतिस्मा देते हैं तो वो किस तरह बुलाते हैं? तुमको ऐ सांप के बच्चों किसने जता दिया कि खुदा के आने वाले अजाब से बचो। अगर तो यीशु मसीह का बपतिस्मा भी गुनाहों का बपतिस्मा होता ना तो सेम कलमात यीशु मसीह के लिए होते, लेकिन यीशु मसीह के लिए पता है क्या है? मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। इसका मतलब पता है क्या है कि यीशु मसीह को गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा नहीं था दिया गया, उनको मखसूस होने का बपतिस्मा दिया गया था। और उनकी मखसूसियत के वक्त रूहुल कुद्स का जो नज़ूल है वो इनकी तायद थी उनकी मखसूसियत की कि अब उनका मिशन शुरू है। यही तो सबब है कि बपतिस्मा के फ़ौरन बाद पहले वो हैकल में सरमन नहीं देते नज़र आते, बपतिस्मा के फ़ौरन बाद जाके हैकल में पहला सरमन देते हैं। तो ये सारी इनकी टामक टोइयाँ टेवे इन्होंने लगाए हैं, बस इन्होंने कोई भी गुनाह ये यीशु मसीह का साबित नहीं कर सके। और क़यामत तक माँ ने कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा हकीम नहीं जना जो क़यामत तक यीशु मसीह को जो है गुनाहगार साबित कर सके बाइबल के अंदर से। अच्छा जी, उसके बाद इनकी मैंने दोनों बातों का जवाब जो इसी के अंदर दे दिया। जो उन्होंने कहा जी रूहुल कुद्स इसलिए नाज़िल हुआ क्योंकि तब उनके गुनाह माफ़ हुए। जब गुनाहों का बपतिस्मा ही नहीं था तो फिर इसका मतलब इनकी रूहुल कुद्स वाली दूसरी बात जो है उसका भी रद्द इसी के अंदर हो जाता है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबानी इकरार किया कि वो नेक नहीं है। कैसे इकरार किया जी? जब एक शख्स उनके पास आकर कहता है कि अय नेक उस्ताद मैं क्या करूँ। ये क़यामत तक बाइबल इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, क़यामत तक हकीम साहब ये उस हवाले में दिखा ही नहीं सकते कि यीशु मसीह ने कहा हो मैं नेक नहीं हूँ। चैलेंज है इनको, नहीं दिखा सकते ये। वहाँ पर यीशु मसीह बल्कि उससे सवाल करते हैं, इसको अंग्रेज़ी में रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जो किसी को एहसास दिलाने के लिए सवाल पूछा जाता है। जिस तरह हम कोई अजीबोगरीब कपड़े पहने तो हम कहते नहीं है तू की पा आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अंधे हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब हम उसे एहसास दिलाने के लिए पूछ रहे हैं कि तू की पा आए हैं। इसी तरह से यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो सिर्फ खुदा है। इसका क्या मतलब है? पुराने अहदनामा में यशायाह नबी के सीफ़ा में लिखा है कि हमारे रास्तबाजी के काम खुदा के बराबरी में जब उसका कंपेयर करें हजूर तो गंदी धजियों की नापाक लिबास की मानिद है। मतलब कि अगर हम इंसानी तौर पे इतने ज़्यादा पाक हो जाए ना कि दुनिया में हाजी साहब कहना शुरू कर दे तो फिर भी हम इतने हाजी नहीं हो सकते कि खुदा जितने पाक हो जाएं। तो इसी सबब से हम जो हैं अपने तई वो पाक नहीं हो सकते। तो चूँकि पाक नहीं हो सकते तो फिर इसलिए किसी को यहूदियों के यहाँ नेक नहीं था कहा जाता, क्योंकि
صرف خدا نیک ہے. تو جب وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ آئے نیک استاد تو یسوع مسیح کو جھنجھوڑ رہے ہیں, تو نے مجھے نیک کہا, تجھے پتہ ہے تو مجھے کیا کہہ رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. پھر سے ثابت ہوا کہ اپنی سی جب کہتا ہے, جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے. اچھا چلیں جی, شکریہ. البتہ آپ نے دیکھا میں نے ان کی بیشتر باتوں کے جوابات دے دیے, جو نہیں دیے گئے وہ ٹائم کے سبب سے, لیکن جو ہے اس میں خلاصے میں کوشش کروں گا کہ جو باقی باتیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. اور آپ نے ان کی خیانتیں بھی ساری دیکھ لی. اچھا جی, اس مناظرے کے 2 حصے اختتام پذیر ہوئے. اب ہم آخری حصہ جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہے اس کی طرف بڑھیں گے. دونوں فریقین اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں گے, اور دونوں کے پاس 10-10 منٹ ہیں. پہلے حکیم عمران ثاقب صاحب آئیں گے, اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں گے. اس کے بعد پاسٹر میتھیو سلیمان اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں گے. اور دونوں کے لیے ایک شرط جو کہ واضح ہے کہ دونوں کوئی نئی بات نہیں کریں گے. جو باتیں ابھی تک انہوں نے اپنے مقدمے میں اور اپنے ریبرٹلز میں کی ان کو ہی یہ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں پیش کریں گے. تو پہلے آئیں گے حکیم عمران ثاقب صاحب, 10 منٹ, اور دونوں کے پاس 10-10 منٹ دے. ہاں جی سٹارٹ ہے. لیں جی, میں نے انہیں کھلا چیلنج دیا تھا اور 5 لغات بتائی تھیں عربی کی جو لسان العرب ہے, جن میں مسیحیوں کی بھی ہے, قاموس جو ہے 5 لغات عرب آج گوگل کی بدولت جو ہے یہاں دستیاب بھی ہیں. اور میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ عرب کی کسی ایک لغت سے انہوں نے کہا ثابت کر دے ضم کا معنی گناہ. انہوں نے کہا جی انہوں نے معنی نہیں بتایا, یا پتہ نہیں یہ آپ بونتل گئے ہیں کیا ہوا ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب بندہ پگ باندھتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو بندہ لٹکاتا ہے نا شملے کا, اس کو کہتے ہیں ایک. دوسرا میں نے کہا تھا چوہا ہوتا ہے نا, اس کی دم ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ضم, جو اس کا حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجازی طور پہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا معنی گناہ بھی کر سکتے ہیں, مگر اس کا معنی گناہ نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو. ہفتہ 10 دن مہینہ کے بعد بھی آپ ثابت کر دیں. ویڈیو بن رہی ہے, میں اپنے چیلنج پہ قائم ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا, سورہ قصص کا انہوں نے حوالہ دیا جی, تو اس میں جناب جی اس کو جناب خطا کار کیا کہا گیا ہے, حمان وغیرہ یہ وہ کہا گیا ہے. تو بھائی ان کو صرف خطا کار نہیں کہا گیا, ان کے دیگر بھی, ان کے کفر بھی بیان ہے, ان کے شرک بھی بیان ہے. صرف ایک بات لے کے آپ نہیں کر سکتے بات. وہاں پہ نہیں, آپ پوری بات پڑھیں گے تو اس میں ہے, پورے واقعات میں کہیں اور اس کا نہیں لکھا گیا اس کا کفر اور شرک. اچھا, انہوں نے جو داؤد کے پاس 2 آئے مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے 99 دنبیاں. وہ قرآن نے حق بیان کیا, تمہاری اس بائبل کی تکذیب کو جھٹلایا ہے. بائبل نے کہا کہ اس کے پاس جو تھی نا 99 دنبیاں سے 99 بیویاں تھیں, تو ایک اوریا کی بیوی تھی, اس نے اس پر بھی قبضہ کر لیا. اچھا, قرآن نے تو اس بات کا صاف انکار کیا ہے, اور کیا کہا ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا کہ اس دن میں کوئی کام نہیں کروں گا, صرف خدا کی عبادت کروں گا. 2 آدمی آئے فیصلہ کروانے کے لیے, 2 بھائی تھے, ایک یار مکار تھا, ایک بیچارہ سادہ آدمی تھا. ایک کے پاس 99 دنبیاں تھی, اس نے اس کی بھی ایک ہتھیا لی. تو وہ کسی کی بات کی جا رہی ہے, داؤد کی نہیں بات کی جا رہی. انہوں نے کہا تفسیر در منصور. ایک اصول یاد رکھیں, ہمارے یہاں جو ہے نا تفسیر ہو کوئی صحیح سند کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہے, صحیح سند کے ساتھ نہ ہو تو ہمارے ہاں وہ ایپوکریفا ہوتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس طرح آپ کے ہاں 70 سے زائد انجیلیں ہیں مگر وہ ایپوکریف ہیں, آپ ان کو نہیں مانتے. ہمارے یہاں ایسی بے شمار روایتیں ہیں جو وہ اگر ان کی سند صحیح نہ ہو, راوی صادق نہ ہو, تو ہم ان کو نہیں مانتے. ایسی تفسیر جو بلا سند ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بھائی. اچھا, بڑی حیرت کی بات ہے, کہتے ہیں جی پورا باب پڑھے, خدا کی روش ٹھیک نہیں ہے. یہ بڑا لطیفہ انہوں نے بیان کیا, جب آپ ویڈیو میں دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آخر میں پھر یہ کہتے ہیں جی یہودی اس لیے کہتے تھے کہ خدا کی روش راست نہیں, یعنی گھوم گھما کے پھر ادھر ہی آ گیا جو میں نے کہا تھا.
अच्छा, ये कहते हैं औरत से पैदा हुआ कुल नस्ल इंसानी की बात है, ये इनके अल्फाज में वीडियो के अंदर सुन लें, कुल नस्ल इंसानी की बात है। अब यस्सु मसीह को कुल नस्ल इंसानी से बाहर करके दिखाएं। यस्सु औरत के बेटे नहीं, और वो नस्ल इंसानी नहीं, वो इब्ने आदम नहीं। अगर आप कहेंगे कि बगैर बाप के पैदा हुआ, तो भाई उनकी वालदा तो पैदा हुई ना बाप से, तो वो तो आई ना औलाद आदम से, और यस्सु उनके पेट में परवरिश पाई है, उनके खून से पले बड़े हैं, उनका दूध पी के परवरिश पाई है, नस्ल इंसानी में तो आ गया वो, इस लिहाज से भी। इन्होंने कहा जी बलदत सूखी वाला जवाब हमारा नहीं है, इंशाल्लाह बड़ा कुछ मानेंगे आप। वो आपका फैसलाबाद वाला जो था ना पास्टर परवेज़, उसने तो वाज़े कहा था हाँ जी यस्सु शराब पीते थे कभी कभी, अब बहुत कुछ मानेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो ना हो यार, आपको क्या मसला है भाई? क्या क्या नई बात है? नई बात क्या है यार? उन तुसी ओ सब्र करे, ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पिए। अच्छा, कोई इंसान अपनी जनाब ख़ताओं का फ़िदिया नहीं दे सकता कोई इंसान अपनी ख़ताओं का जनाब फ़िदिया नहीं दे सकता, ये पता नहीं आपकी अपनी खुद साख्ता बातें हैं। बाइबल इसके बरक्स है। हमारा खैर ये मौजू नहीं है, जब ये मौजू आएगा ना नजात का, ये उसकी बातें हैं। अच्छा, एक बड़ा लतीफ़ा इन्होंने कहा जी हराम ज़्यादा 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में शामिल होने का अहल नहीं, इसका इतलाक़ फ़ारस पर नहीं होता, और इसका इतलाक़ जनाब दाऊद पर तो होता है ना, तो दाऊद फ़ारस की नामी पुश्त में आ रहे हैं, उन पर तो इतलाक़ होता है ना इनका। और उसके बाद मैंने सिर्फ एक फ़ारस की बात की है, और मैंने रूत की बात की है, मैंने जनाब कितना पूरा शजरा पढ़ के आपको सुनाया, क्या क्या नहीं सुनाया आपको। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी सेने काबा में 300 बुत, वो जनाब उनके दादा बुत पूजते थे। भाई दादा बुत पूजे, कोई बुत पूजे, हमारा तो ये असूल ही नहीं है। हमारा तो असूल ये है कि पैगंबर का बेटा अगर गुनाहगार है तो बेटे के ऊपर उसका बोझ होगा, पैगंबर पर बोझ नहीं होगा। अगर जनाब इब्राहिम के बाप जो है वो बुत परस्त है, उस बुत परस्त के घर अल्लाह ने इब्राहिम को, हमारा तो ये असूल ही नहीं, हमारा मुनाजरा असूल बाइबल पर है। मैं समझता हूँ कि आपने मेरे दावे को ही नहीं समझा। मेरा दावा ये है कि बेंचमार्क बाइबल है, असूल बाइबल से यस्सु बेगुनाह बेऐब साबित नहीं होते। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे ना दादा, वो थे ना, ये दें जी मुझे, ये हदीस है मुसदरक हाकम की। सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपने अयाम जहालत में कभी ऐसे हराम काम किए थे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने अयाम जहालत में भी कभी ऐसे काम नहीं किए थे। वो तो अल्लाह के रसूल है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली और कई ऐसे लोग हैं जो तबन उन्हें बुत परस्ती से नफ़रत थी, शराब से नफ़रत थी, जुए से नफ़रत थी। ये कई ऐसे ये लोग हनीफ कहलाते थे, ये पूरा एक ग्रोह था भाई। तो ये कौन सी ऐसी बात है भाई, दादा बुत पूजे, हमें उससे क्या? ये हमारा असूल ही नहीं, कुरान का असूल ही नहीं। कुरान का तो असूल ये है, बल्कि बाइबल का भी असूल ये है कि जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। तो चूँकि अकीदा कफ़ारा आपका है, इसलिए आप उसकी ज़द में आते हैं। नहीं जी, आपकी बात का जवाब दिया है, नहीं जवाब दिया आपकी बात का जी। इन्होंने कहा जी मैं तो खुद तुझसे बिप्तस्मा लेने का मोहताज हूँ। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था ये खुद साख्ता है, आप देख लीजिए, आपने वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने तो उसी वक्त इसका जवाब दे दिया। इन्होंने कहा जी कोई भी वो मान, अच्छा कबूतर की तरह आंखें बंद करने से क्या होता है? मैंने 17 वाले बाइबल से दिए हैं अल्लाह के फजलो करम से, और दुनिया देख रही है, अब साबित हो जाएगा ये आप। अच्छा, फिर ये जो करते हैं ना जनाब, मैं मैथ्यू साहब से ये गुजारिश भी करूँगा कि भाई ये जो करते हैं ना आप मजाक उड़ाना और ये वो, इस तरह यार ना किया करें। अभी आपने ना एक लफ्ज़ बोला था यहाँ पे, क्या है मैं आपको बताऊँ, हम जो उसके ऊपर ना हम ऐसी बातों पर आपका मुहासबा नहीं करते। क्यों? हमें पता होता है कि भाई आप अरबी आप नहीं जानते, इस्लामी इस्लाहात आप नहीं जानते, तो इसलिए हम जनाब वो लिखा था जी कोई गल नहीं, हो गया तो मैं छड़ देंगा जनाब। तनवीर साहब तो पता नहीं की मसला हो रहा। अच्छा, इन्होंने कहा जी आटा ना साफ़ हो, पेड़ा साफ़ ना हो, ये असूल भाई आपकी बाइबल का है, हमारे कुरान का असूल नहीं, इस्लामी असूल नहीं।
तो ये आपकी जनाब बाइबल का असूल है, हम असूल बाइबल पे बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बाइबल के तनाज़ुर में, बाइबल के असूल से। अच्छा, इन्होंने कहा जी मैं नेक नहीं, तू मुझको क्यों नेक कहता है। इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। अलूहीत मसीह खुद बाइबल से साबित नहीं है। मसीही फ़िरके ऐसे मौजूद हैं जो यस्सू को इलाह नहीं मानते हैं, और कुछ तसलीस के कायल हैं, कुछ तसलीस के कायल नहीं हैं, कुछ इलाह नहीं मानते हैं यस्सू को। ये तो भाई आपके दरमियान बात मुतनाज़ा है। तो आप ये कहें कि वो जी उसको खुदा कह रहा था, तो ये जनाब बाइबल के भी ख़िलाफ़ है। बाइबल से मैंने अर्ज़ किया था कि यस्सू मसीह का खुदा को सजदा करना, दुआ करना, खुदा की इबादत करना साबित है। अगर वो खुदा है तो किसकी इबादत कर रहे हैं? खुदा की इबादत कर रहा है। ये कैसे, ये में आपकी फजूल बात है कि तू मुझको नेक क्यों कहता है, नेक तो कोई नहीं, सिर्फ खुदा है। तो ये सच फरमाया मसीह ने कि मैं नेक नहीं हूँ, खुदा ही नेक है सिर्फ। जी ठीक है जनाब, शुक्रिया, सब बातों का जवाब हो चुका। चलो कोई गल नहीं, पूरा हो गया, कोई बात जनाब। तुम 30 सैकंड छड़ के मिनट नहीं ऐ मजाक से गल हुई कि सीरियस है? फैसला कर लो। हाँ इन्हें करो, ये मजाक से गल नहीं मैं सीरियस कर रही हूँ। 3 मिनट मैनू 3 मिनट मैनू सिर्फ 1 मिनट है। रिजवान साहब दे रही है 30 मिनट। हेलो नहीं वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही आए ने ना। अच्छा जी, अब अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए पास्टर मैथ्यू सुलेमान आएंगे और उनके पास 10 मिनट है। ये माइक लगने के बाद टाइम शुरू किया करो यार मेरा। अच्छा जी, नेक वाली बात का इधर से शुरू करता हूँ मैं, कि वो जो जवाब दिया था ना मैंने कि यीशु मसीह, तो उसको रिटोरिकल क्वेश्चन था। ये कहते हैं जी उसका तो मैं जवाब दे चुका हूँ। जवाब क्या दिया है कि नहीं जी वो ये सही बात नहीं है। भाई ये क्या जवाब है भाई? ये तो कोई जवाब नहीं है। फिर इन्होंने दोबारा कहा है, और मैंने इनको चैलेंज किया था, और मैंने ये भी कहा था कि क़यामत तक नहीं ये दिखा सकते, और वाकई नहीं दिखा सके। ये चैलेंज पता है क्या था मेरा? भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, वो ना बस मत बार मारी गई है इनकी। कहते बातें वो कर रहे, कहते हैं तनवीर साहब तुसी बड़ा बोल दे हो। सबूत मैंने सबूत दिया। अब साथ मैं बात का सबूत देता हूँ, बगैर सबूत की बात नहीं करता। कहते हैं जी कि जी वो ये जो इन्होंने बात की है ना बपतिस्मे वाली बात का, ये कहते हैं कि जो यूहन्ना का हवाला मैंने आपको बताया कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। कहते हैं वो तो सारी, मैंने जवाब क्या दिया है कि ये जो सारी की सारी बात है ये तो बाद में ऐड की गई है। ये इनका जवाब था जी। अब सुन लें ये वाली बात भी। उसकी दलील क्या है इनके पास कि जेल में जब था यूहन्ना इस्तबागी, तो वो अपने शागिर्दों को भेजता कि उससे जाकर पूछो आने वाला तू है या हम किसी और की राह देखें। इनको पता ही नहीं, बाइबल ही नहीं आती। अब ये भी मैं बताकर इनको सिखाने लगा हूँ, बाइबल एहसान करने लगा हूँ। असल में जब जवाब देखेंगे यीशु मसीह का, जब यूहन्ना अपने शागिर्दों को भेजता है और वो जाकर पूछते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उससे जाकर कहो। सीधा भी जवाब दिया जा सकता था ना, हाँ या ना में। वो कहते हैं कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। ये सारी बातें अगर आप यशायाह 35 बाब में जाकर पढ़ें, पहली 5 आयत, तो वहाँ पर लिखा है खुदा कहता है कि जब मैं आऊँगा तो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे। तो यीशु मसीह ने क्यों यूहन्ना ने पहले नंबर पर यह सवाल बताया? असल में ये ऐलान करवाने के लिए कि जब ये पूछेंगे तो यीशु मसीह अपनी शनाख्त का इजहार करेंगे और इनको भी पता चल जाएगा। यही तो सबब है कि यूहन्ना के शागिर्दी बाद में यीशु मसीह के पीछे हो लिए, उनकी शागिर्दियत में आगे। और यीशु मसीह ने फिर उनको चूँकि पता था कि किस ज़्यादा से ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी फिर जवाब ऐसा ही दिया। लें जी, ये हो गया इनका मलिया मेट उस दावे का कि बात बाद में डाली गई थी। ये बात नहीं थी बाद में डाली गई, ये आपके दिल पर जो अलका हुआ था ना, वो ही गलत हो गया था असल में। अच्छा फिर ये बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इनका। इन्होंने बात की, इन्होंने कहा जी कि पेड़े और आटे वाली जो बात है ये तो आपकी है, ये तो बाइबल की है, मुनाजरा तो बाइबल पर हो रहा है, ये हमारी बात तो है ही नहीं है। वेरी गुड, फंटेस्टिक। पता है क्यों?
یہ ریکارڈڈ بھی ہے مناظرہ اور پچھلا مناظرہ. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا جب انہوں نے پرانے عہد نامہ سے اور رومیوں کے خاص سے یہ حوالہ دیا نا کہ آٹا جو ہے ایک پیڑا صاف ہو تو آٹا صاف ہو تو پیڑا بھی صاف ہے, انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے, منطقی بات ہے, ہم اس سے بالکل سہمت ہیں. ایسے ہی کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا جیسے میں کھڑا تھا ابھی. انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس سے سہمت ہیں, اور انہوں نے قرآن سے بھی ایک حوالہ دیا تھا اس کے حق میں مثال کے طور پر کہ جی قرآن بھی یہ بات کہتا ہے. اب دیکھیں کیسے بدل رہے ہیں اپنی دلیل سے, یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں, یہ تو آپ کا ہے, یہ تو بائبل کا ہے. جب اب پہلے یہ سہمت ہیں اس کو ٹھیک کہہ رہے منطقی طور پہ, لیکن جب وہی پھر ان کے اوپر سوال ڈالا گیا نا اور ان کو کہا کہ یہ ہے جی آٹا آپ کا, نکال لیں اس میں سے اب پیڑا, تو انہوں نے اپنے آپ کی بات میں سے نکال لیا. انہوں نے پیڑا نکالنے کی بجائے اپنے آپ کی بات سے نکال دیا. اچھا چیک کریں ذرا ان کی فنکاریاں. اچھا پھر یہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ آپ سب کچھ مانیں گے. پہلے نمبر پر تو آپ کسی مناظرے میں میرے کسی آن لائن لیکچر میں دکھا دیں کہ میں نے اس بات کا جواب ایوب علی کا بلد سوکھی والا دیا ہو, میں نے تو دیا ہی نہیں, تو میں کس بات کو مانوں گا. ماننا تو ہوتا ہے نا جس کا آپ نے پہلے انکار کیا اور بعد میں مان جائے. نہ کبھی ہم نے اس کو ماننا, نہ کوئی لینا دینا, تیسرے گھر سے بات اٹھا کے ہمیں منوا رہے ہیں یہ. اچھا کہتے ہیں جی یسوع مسیح کے لیے آپ نے کہا, بے ابھی بڑی مزے کی بات دیکھیں, انہوں نے مناظرہ ہی میرے ہاتھ میں دے دیا ہے یہ دو باتیں کر کے. پہلی بات جنہوں نے آٹے اور پیڑے والی بات کی, یہ مناظرہ انہوں نے مجھے دے دیا بات کر کے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وہاں پہ جو لکھا کہ عورت سے پیدا ہوتا ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کل انسان. پچھلے مناظرے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب کل انسان نہیں, عورت سے کون پیدا ہوا تھا, یسوع. آج جب ان کی تصحیح ہو گئی, ان کو سکھا دی میں نے بائبل, تو اب یہ مان کے نا اس کو, تو پھر کہہ رہے ہیں اچھا چلیں پھر اس میں یسوع مسیح بھی تو آتے ہیں نا اس میں. نہ آپ نے کی ہے نہ آپ نے کی ہے. ہاں ایک منٹ روکو ٹائم. آپ نے دو باتیں پرویسا والی کی ہے نا, بس ایسے ہی ہوتا ہے پھر. اب ٹھنڈا پانی پیئیں آپ, ہیں یہ جامع شریف لا کے دیں ذرا ان کو. ہاں لا سو ہو جائے گا سارا کچھ. اچھا پھر انہوں نے ایک اور بڑی خیانت کی علمی کہ جی وہ جو وہاں پر خطا فرعون والا حوالہ دیا, وہاں پہ خطا کے علاوہ اور بھی باتیں, وہ پڑھ کے دیکھ لیں دوبارہ, میں نے پڑھی بھی تھی آیت, کوئی ادھر ایسا معاملہ نہیں ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں, انہوں نے ہمیں بائبل پڑھانی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ماں نے کوئی ایسا بچہ یا حکیم کوئی نہیں جنا دنیا میں جو یسوع مسیح کو بائبل سے گناہ گار ثابت کر سکے. اور آج انہوں نے اپنے جو جوابات دیے, اور آپ نے دیکھا جو انہوں نے کتنے بھونڈے اعتراضات کیے ہیں بائبل کے اوپر, وہ ایسے ملیا میٹ ایک دم جنازہ نکل آیا ان کا, جب ان کو ہم نے سمجھایا کہ بائبل کے مطابق ان کا مطلب کیا ہے. تو یہ جو بار بار چیخ کر کہہ رہے تھے میں نے 17 دلائل دیے ہیں, یہ ملیا میٹ ہو گئے, صفایا ہو گیا 17 دلائل کا آپ کے. اچھا جی اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں. ہاں جی ہاں وہ اسی طرف آ رہا ہوں میں. اسی طرف آ رہا ہوں. ہاں اچھا ایک اور انہوں نے بات کی, امثال 21:18 میں لکھا ہے شریر صادق کا فدیہ ہوگا. تو آپ نے تو یسوع مسیح کو شریر بنا دیا کیونکہ وہ آپ کا فدیہ دے رہا ہے. ارے نہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی. زبور 49 میں کیا لکھا ہے کہ فدیہ کوئی انسان کسی انسان کا دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ فدیہ دینے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. تو اصل میں تو پھر خدا کون فدیہ دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. تو اسی سبب سے اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریر ہے, اس کا مطلب ہم شریر ہیں اور ہمیں فدیہ کی ضرورت ہے. چونکہ ہم خود نہیں دے سکتے تو اس لیے یسوع مسیح نے دیا. یہ میں سکھا رہا ہوں ان کو بائبل. ہاں یسوع مسیح نے کانا گلیل میں جو ہے, یہ خیر لمبی بات ہے, اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے, لیکن اس کے اوپر جو ہے پہلے ان کو جو ہے وہ ایک دو لوگوں نے ٹھیک جواب دے دیا ہوا ہے. ظاہر ہے ہمارا بھی کچھ تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے. اچھا انہوں نے نا بڑی بےہودہ ایک بات کی ہے, اور وہ بات کیا انہوں نے کی ہے مریم مگدلینی کے بارے میں,
اور انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا, بائبل دیں جی مجھے حوالہ نکال کے دیں. وہ یہ کہتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا روک کے ان کو کہ وہاں پر لکھا ہے کہ پیروں کی تلیوں میں جو ہے وہ بال اپنے جو ہے رگڑے تھے انہوں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. میں نے حوالہ پوچھا, انہوں نے حوالہ بھی دیا. اب جو انہوں نے حوالہ دیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں ان کی علمی خیانتیں دیکھیں, چیک کریں ذرا, پھرتیاں چیک کریں ذرا ان کی, کیسے ایک دم سے یہ ہونا کی انجیل میں ہے نا سرکے والا ہاں تیل ملا. اچھا سنیں. پھر یسوع فسح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مارتھا خدمت کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی تھی. وہ کوئی حکیم نہیں تھی گجراں والا سے جو پیروں میں جو ہے وہ تیل رگڑتی پھرتی بالوں سے. وہ خدمت کر رہی تھی یسوع مسیح کی عاجزی کی غرض سے. مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے. پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے. لیں جی, پھر سے ثابت ہو گیا کہ جو حوالہ انہوں نے کوٹ کیا تھا یسوع مسیح کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے وہ ان کی اپنی من چاہی تفسیر تھی. شیطان جھوٹوں کا باپ ہے, جب وہ بولتا ہے تو اپنی سی کہتا ہے. انہوں نے اپنی سی کہی ہے. ان سے میں نے روک کر ان کو پوچھا کہ کیا وہاں لکھا ہے کہ اس کے تلیوں میں جو ہے پیروں کی بال رگڑے تھے؟ ہاں جی لکھا ہے, حوالہ بھی خود بتایا, ادھر لکھا ہی نہیں ہوا. ادھر لکھا ہے کہ اس نے پیروں کے اوپر تیل ڈالا اور بعد میں اس عطر ڈالا اور بعد میں اس عطر کو اپنے سر سے پونچھا. تو یہ مقدسہ مریم کی جو ہے عاجزی کا اظہار تھا. یہ مریم مگدلینی جو ہے یہ اس کی خداوند اس کی بندگی کا اور یہ خدا یسوع مسیح کے لیے جو اس کی محبت تھی اس کا اظہار تھا. آپ اس کو غلط مطلب دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کے ذہن کی غلاظت ہے جس کو آپ زبردستی بائبل کے اوپر اور یسوع مسیح کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا نہیں یار یہ بات اب ٹائم نہیں ہے اس کا. تو یہ آپ کے اپنے ذہن کی غلاظت ہے جس کو یسوع مسیح پر آپ زبردستی جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جو ہے ہاں انہوں نے کہا جی اپنی ماں کی جو ہے عزت نہیں کی, ان کے ساتھ بدتمیزی کی. جب ان کو کہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. یسوع مسیح جان بوجھ کے الفاظ کہتے تھے اور آپ نے غور کیا کہ مجمع میں یہ کہتے تھے. کانہ گلیل میں مجمع تھا تب کا, سلیب کے اوپر جب تھے تب مجمع تھا تب یہ کہا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب یسوع مسیح مجمع میں کہتے تھے تو سب کی توجہ دلا رہے تھے کہ عورت کی نسل سے آنا تھا جس نے نسل انسانی کا کفارہ دینا تھا. تو یہ وہ عورت ہے اصل میں جس کے متعلق وہ بات تھی اور میں اس کی نسل سے آ گیا ہوں اور میں آپ سب کا نجات دہندہ ہوں. تو یہ بات تھی. ان کو پتہ ہی نہیں بائبل کا, بائبل ہم سکھائیں گے ان کو. شکریہ. ہاں جی گر گیا نیچے. اچھا جی, آپ سب کے صبر کا شکریہ. آپ کو جیسا آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ کوئی بھی ہلڑ بازی نہیں کرے گا, کوئی سیٹی تالی یا بیچ میں بولے گا نہیں, آپ سب نے اس ہدایت کو مانا, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اب وقت ہے کہ آپ لوگوں نے جو باتیں سیکھی اور جو بات سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, 3 مسیحی حکیم صاحب سے سوال کر سکتے ہیں اور 3 سوالات مسلم دوستوں کی طرف سے بھائی میتھیو کو کیے جا سکتے ہیں. تو جلدی سے سامنے آ جائیں اور اپنے سوالات کریں تاکہ پھر ان کے جوابات دیے جا سکیں. پہلے حکیم صاحب سے سوال. کوئی گل نہیں, سوال تو 3 نہیں ہونے نے, سوال تو 3 نہیں نے. ہاں جی لگانے کیا لگانے نہیں پکڑنے نہ لگاؤ نا. اچھا چلے پکڑ لیں, یہ لگا لیں, چلیں پکڑ کے کام آسان ہو جائے. میرا نام ظفر اقبال. میرا مسیحی مناظر سے سوال ہے کہ غلطیوں 3:13 کے مطابق یسوع ملعون ہوئے یا بنے یا جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں, نتیجہ یہی ہے کہ لعنت ان پر پڑ گئی. تو اب یہ لعنت ان سے کب ہٹی؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں کوئی نص درکار ہے, کوئی خود ساختہ تعویلات یا ادھر ادھر کی بات نہیں. شکریہ.
अच्छा माइक बस पकड़ ले ताकि हाँ इस तरह ठीक है मेरा ख्याल है ना, वो होगा तो डिस्टॉर्शन तो नहीं है, नहीं यार इस तरह ही ठीक है। हाँ अच्छा जी, इन्होंने सवाल ये पूछा है कि यीशु मसीह के ऊपर जो लानत पड़ गई थी वो कब ख़त्म हुई। असल में ये जो सवाल है ना, बाज़ब का जो सवालात होते हैं ना, उनको उनके जवाबात नहीं होते, उनकी दुरुस्तगी होती है, तसहीह होती है। ये जो सवाल है, इस सवाल से क़यास ये किया जा रहा है, सोचा ये जा रहा है कि हम शायद ये मान रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जो लानत पड़ी थी, यीशु मसीह के ऊपर जो है वो लानत पड़ गई थी और वो लानत कभी हटी ही नहीं, तो उसके हिसाब से इन्होंने फिर ये सवाल बनाया। तो ये सवाल ठीक नहीं है। अलबत्ता ये है कि हमारा जो ईमान है वो, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका था और दोबारा उसका इजहार कर दूँ कि पौलुस रसूल जब कहते हैं कि मसीह हमारे लिए लानती बना, तो असल में वो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं वो उस मौत को लेकर बात कर रहे हैं जिस मौत को यीशु मसीह ने गवारा किया था, वो मौत लानती थी। अब ये जो बात है कि जी वो मौत जो है सलीब की मौत, सलीब पे जो मुआ वो लानती हुआ, ये बात कहाँ पे पुराने हदनामा में? पुराने हदनामा में नहीं है, इसलिए क्योंकि यहूदियों का तरीका ही नहीं था, ये रोमन्स का तरीका था। और रोमन्स के दौर में जब सलीबें दी जाती थी तो तारीख शाहिद है कि सलीबी मौत को जो है वो एक लानती मौत गर्दाना जाता था। तो इस बात का जो पौलुस रसूल कर रहे हैं कि सलीब की जो ये मौत है ये लानती मौत है, इसको वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ये इसको वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि जिस दौर में वो थे उस दौर में सलीब की मौत के लिए उस दौर की हुकूमत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। तो अलबत्ता जो इनकी बात का जवाब है, ये इजाफी बात मैंने इसलिए साथ किया क्योंकि उन्होंने की थी हकीम साहब ने, जो उनकी बात का जवाब है वो यही है कि जब पौलुस रसूल ने कहा, और हमारा भी ये ईमान है कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो असल में वो मौत लानती थी जिसको यीशु मसीह ने गवारा किया और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया उन्होंने, ताकि हम जो हैं हमें आज़ादी दी जा सके, हमारा कफ़ारा जो है, हमारी निजात मुमकिन हो सके। आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान असगर है। मेरा सवाल मैथ्यू भाई से है कि हेज़िकेल की बाब 23 की आयत 45 में लिखा है कि सादिक आदमी जो होगा वो बदकार औरतों पर फतवा देगा या देते हैं, जबकि यूहन्ना बाब 8 में हम देखते हैं लिखा है कि एक बदकार औरत के मतलब सवाल पूछा गया तो यसू ने कोई फतवा नहीं लगाया। और इसी पर इसी औरत को लूका के बाब 7 की आयत नंबर 39 में बदचलन और बदकार लिखा हुआ है। तो क्या ये साबित नहीं करता कि यसू सादिक नहीं थे? शुक्रिया। रिपीट कर दी सवाल का आखिरी हिस्सा जो आखिरी हिस्सा ये है कि लूका की बाब 7 की आयत 39 में इसी औरत को बदचलन और बदकार लिखा हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि कोई पत्थर ना मारे। हाँ जी, तो क्या ये साबित नहीं होता कि यसू जो हैं वो सादिक नहीं है, क्योंकि सादिक जो हैं वो तो बदकार औरतों पर फतवा लगाएंगे? अच्छा, ये जो बात है ना, इसका तफसीली थोड़ा सा जवाब होगा, लेकिन मैं सारी रात नहीं बिठाऊंगा आपको, जाहिर है। अब बात ये है कि ये उन बातों में से एक है जो ये भी कहा गया था कि यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में मिलावट की। उसी तनाजुर में ये भी सवाल पूछा गया कि खुदा ने कहा था कि जो ज़नाकार है उसके लिए ये, बदकारी में जो पकड़ा जाए उसके लिए ये सज़ा है, तो यीशु मसीह ने जो है उस हुक्म को बदल दिया। सब्बत के मुतल्लिक़ भी फिर ये बात की गई कि यीशु मसीह ने सब्बत का जो हुक्म है वो भी तोड़ दिया। सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात की गई है। बात ये है जी कि हम मसीहियों का ये पहले नंबर पर ईमान ही नहीं कि यीशु मसीह जो है वो महज इंसान है। हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह मुकम्मल तौर पे इंसान और मुकम्मल तौर पे खुदा है। और जब हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे इंसान और मुकम्मल तौर पे खुदा है, तो अगरचे बाकी अनबिया जो इंसान थे, महज इंसान थे, वो साहिब शरीयत थे, तो इसी तरह यीशु मसीह भी साहिब शरीयत थे। तो उन्होंने किसी कानून के अंदर जो है वो मिलावट नहीं की, खुदा के कलाम को तब्दील नहीं किया, बल्कि ये कलाम वो ख़ुद ही देने वाले थे और इसी को आके उन्होंने रीडिफ़ाइन किया। हमें कहाँ से सबूत मिलता है? खरूज की किताब 3 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ें, 2 आयत से पढ़ेंगे। ये हज़रत मूसा का जिक्र है कि जब वो उस जलती हुई झाड़ी के पास जाते हैं और जलती हुई झाड़ी में से क्या आवाज़ आती है या क्या लिखा है, और खुदावन का फ़रिश्ता, अब्रानी ज़ुबान में मलक यहोवा लिखा हुआ है यहाँ पे। खुदावन का फ़रिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी बसम नहीं होती।
तब मूसा ने कहा, बाय द वे ये दोज़ख वाली आग नहीं थी जो पूछा गया था ना कि खुदा उसमें जल रहा था। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंज़र को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब अब पहले खुदावंद का फ़रिश्ता उसे मुखातिब है, खुदावंद का फ़रिश्ता उसे नज़र आ रहा है, लेकिन आगे क्या लिखा है, जब खुदावंद ने, अबरानी में यहोवा लिखा है, जब यहोवा ने या खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उससे कहा, ये जो खुदावंद का फ़रिश्ता है इसी को खुदा कहा जा रहा है, तो खुदा ने उससे झाड़ी में से पुकारा और कहा, आए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा। ये जो खुदावन का फ़रिश्ता है वो क्या कह रहा है, मैं तेरे बाप का खुदा, यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुँह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। अब ये बात मैंने बताई क्यों है आपको, इसलिए कि जो खुदा होता है उसके पास ये इख्तियार होता है। जिस तरह आपसे जब हम बात करते हैं और कहते हैं ना कि आप देखें जी, जो पैगम्बर इस्लाम शरीयत लेकर है उसमें तो ये बातें और साहब शरीयत में तो ये नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी वो चूँकि नए नबी थे तो उनको अल्लाह ने नई शरीयत दी। तो खुदा जो है वो अपने अहकामात को रीडिफ़ाइन भी कर सकता है, उसके पास ये इख्तियार है। इसी सबब से खुदा ने जब ये बदकारी करने वाले के लिए हुक्म दिया तो बाद में उसी खुदा ने उसी हुक्म को, यही जो खुदावन का फ़रिश्ता और खुदा है जो मूसा को जलती हुई झाड़ी में नज़र आया, इसी जलती हुई झाड़ी के पास बाद में उसने मूसा को 10 अहकाम भी दिए, इसी खुदा ने, जो कि यीशु मसीह है। और स्तिफनस बाय द वे कहता है कि जो खुदावन का फ़रिश्ता है, नए अहदनामे में माल की किताब में वो कहता है खुदावन का फ़रिश्ता यीशु मसीह है। जब उसने अहकामात दिए तो वही यीशु मसीह है, खुदावन का फ़रिश्ता है। और इसी यीशु मसीह ने नए अहदनामा में आके मत्ती की अंजील 5 से 7 अबवाब में, जिसको पहाड़ी वाज भी कहा जाता है, उन्हीं अहकामात को रीडिफ़ाइन किया। और दिलचस्पी की बात यह है कि उन अहकामात में, जिसको इखलाकी शरीयत के अहकामात कहा जाता है, सब्बत का हुक्म नहीं था, क्योंकि इसी खुदा ने जब सब्बत का हुक्म दिया था तो अब उसको रीडिफ़ाइन कर दिया और ये बताया कि किसी दिन को किसी और दिन पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, आप किसी दिन भी खुदा की इबादत कर सकते हैं। और यहाँ पर भी उसने अगर उस औरत को वहाँ से बरी करवाया तो इस सबब से क्योंकि वो खुदा है, उसके पास इख्तियार था कि वो कर सकता है। उसी ने ये पहले हुक्म दिया और उसी ने बाद में नया हुक्म दिया कि इसको माफ़ करो। और उसके साथ ये ऐसा नहीं है कि उसको हलाशेरी दी कि ठीक है जो मर्ज़ी करते रहो, उसको ये कहा कि फिर गुनाह ना करना, उसको ये कहकर उसको तलकीन करके फिर उसको जो है वहाँ से जाने दिया। ये बात है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका तफसीली जवाब होगा। आ जाएं आगे आ जाएं, कोई मसला नहीं, आ जाएं कोई मसला नहीं। आप आ जाएं ये अगला सवाल है जो उसका हिस्सा है। नहीं, इसी का हिस्सा है, कंफ्यूजन क्लियर करनी है ना। चलें आप आगे आ जाएं, पूछ लें, कोई मसला नहीं। मैथ्यू भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं आपके जवाब से ही। पहला जवाब ये है कि खुदा ने ऐसी शरीयत या ऐसा हुक्म नाज़िल किया जिस पे वो ख़ुद ही अमल करने वाला नहीं था। और दूसरी बात ये कि यहूदियों के पास फिर ऐसा क्या मेयार या क्राइटेरिया था जिससे वो जानते कि यीशु सादिक है कि नहीं, क्योंकि उनके पास तो बेंच मार्क जो है वो पीछे दिया गया था। अब बेंच मार्क पर ख़ुद ही अमल ना करके इससे क्या बताया जा रहा था? उनके पास तो फिर वो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि वो कोई आला लगाते जिससे पता चलता, मेटल डिटेक्टर होता जिससे पता चलता कि वो सादिक थे या नहीं। उनके पास तो बेंच मार्क जो थी वो खुदा की शरीयत थी, ठीक है, तो उसमें तो लिखा होता कि सादिक फतवा लगाएगा। अब जब फतवा नहीं लगाया तो उनके पास तो फिर कोई म्यार नहीं था, तो फिर हम उन्हें कैसे कहेंगे कि कसूरवार, वो उनको कैसे पहचान कैसे होती है उनकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यीशु मसीह ने वहाँ उस मुकाम पे फतवा लगाया था, पता है क्या? जब उन्होंने ये कहा कि तुम में जिसने गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे, तो ये फतवा लगा कर उन्होंने अपने आप को सादिक साबित किया। एक बात, क्रॉस क्वेश्चनिंग, हाँ, उन्होंने जब फतवा लगाया तो उन्होंने साबित किया कि वो सादिक हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि अगर रसूल कहते हैं कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया फिर भी बेखता रहा, लाखता रहा, उसके अंदर फिर भी गुनाह ना था। बेंचमार्क की जहाँ तक आप बात करें तो यीशु मसीह जब वो आते हैं तो मत्ती की अंजील 5वें बाब में शुरू होने से पहले वो कहते हैं कि मैं तौरेत और नबियों को मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ, और वो ख़ुद असल में उसकी तकमील थे। आगे जब वो कहते हैं कि मैंने इसको पूरा किया, तो फिर वो जब रीडिफ़ाइन करते हैं शरीयत को तो वो बताते हैं कि किस शरीयत की अब ज़रूरत है, और इसी को आगे रसूलों ने मसीह की शरीयत कहा है, और वो शरीयत मत्ती की अंजील 5 से 7 अबवाब में दी गई है और उसी में उन्होंने वो अहकामात दिए हैं। तो ये जो है ये सारी बात है। जो आप फतवे की बात करें, यीशु मसीह ने वहाँ पर फतवा दिया था। यीशु मसीह ने जब ये कहा यूहन्ना की अंजील 8 बाब में कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है,
तो वो भी उनका चैलेंज था कि जो आपके पास बेंच मार्क है। और बाय द वे एक और बात, उस वक्त के जो यहूदी थे वो कुली तौर पर उस तौरेत को मानते ही नहीं थे जो मूसा पर नाज़िल हुई थी। और इसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह ने उनसे खुद कहा कि तुम बुज़ुर्गों की रवायतों को मानते हो, तुम बुज़ुर्गों की रवायतों को खुदा के कलाम पर ज़्यादा फोकियत देते हो। और यीशु मसीह बार बार जो है उनको इस बात में उनकी मलामत करते थे। तो ये बात है। अलबत्ता जो यीशु मसीह का चैलेंज था कि तुम्हें कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, अगर यीशु मसीह जो तौरेत मूसवी शरीयत थी उसके ऊपर पूरे ना उतर रहे होते तो बड़ा अच्छा मौका था, वो कह देते कि जी आपने तो ये गलत किया है इसलिए आप जो है वो नहीं उतरते। लेकिन चूँकि वो कार ऐसा है ही नहीं था इसलिए वो चैलेंज को मीट ही नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान है। मेरा नाम इरफान है और मेरा इरफान और मेरा मैथ्यू साहब से सवाल है जी। हकीम साहब ने हवाला दिया था कि यस्सू ने यसा में तहरीफ की है। इसमें यसा में तहरीफ की है। आप दोनों अबारात पढ़ दें और बताएं कि वो कैसे एक हैं। कौन सी वाली तहरीर, कौन सी दोनों बात? सवाल तो पूरा लिख के दिया करें हकीम साहब, अभी मैं ज़फ़र साहब ने लिख के देता है। अच्छा नहीं, सवाल पता है क्या, लिखाई भी सारी पर्चियों पे एक जैसी है। अच्छा अगर आपको समझ आई तो दोहरा दें सवाल। हाँ जी, उसे बह के भी दोहरा सकते हैं। नहीं मैं इतने आगे दोहराना। मैंने एक दलील दी थी कि भाई खुदा के कलाम में जो घटाएगा या बढ़ाएगा, मना किया है खुदा ने घटाना या बढ़ाना, उस पर लानते होंगी इस किताब में जो हैं। फिर मैंने कहा था कि यसाया जो है 61 बाब है, 61 बाब का यस्सू ने हवाला दिया है। उसमें यस्सू मसीह ने बातें इजाफा भी की हैं, कमी भी की हैं। दोनों बातें मैंने पढ़ के सुनाई थी। उनका सवाल ये है दोनों बातें पढ़ दें कि क्या उसमें कमी या इजाफा किया गया है या नहीं, ये सवाल है उनका। अच्छा जी, तब मैंने चलें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, बात देखें इस तरह से है कि उस वक्त भी जब हकीम साहब ने भी, चूँकि आप हकीम साहब के सवाल की बुनियाद पर मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, उस वक्त भी मैंने हकीम साहब से कहा था कि आप ऐसा करें, जो आप कह रहे हैं ना कि और भी बड़े सारे इफ्तराक हैं। इन्होंने एक लफ्ज़ का बताया था कि वहाँ पे गरीब लिखा है, वहाँ पे हलीम लिखा है। मैंने इनसे तब भी कहा था कि और भी बताएं, एक ही है। इन्होंने तब भी यही कहा था। अब तो पीछे बैठे तब आगे खड़े और कहा था नहीं एक नहीं। अब भी इन्होंने यही कहा नहीं एक नहीं। तो मैंने इफ्तराक का मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने नहीं बताया। अलबत्ता बात ये है कि जब पेशन गोई की बात करते हैं तो 2-3 बातें जो जहन में रखने की ज़रूरत है आपको। पहले नंबर पर बात ये है कि मफ़हूम जो है वो सेम होना ज़रूरी है, कि जो बात की गई है वो ये जो है कंट्राडिक्शन उस सूरत में होता कि अगर कंट्राडिक्शन मतलब ये कंट्राडिक्शन उस सूरत में होता कि अगर वहाँ पर जो लिखा हुआ है यसाया नबी के सीफ़े में, यीशु मसीह जब हैकल में पहला सरमन देते हैं लूका की इंजील 4 बाब में, तो उसके बिल्कुल मुतज़ाद देते, या इसके ऊपर एतराज़ तब किया जा सकता था, या इसको मिलावट शुदा बात तब कहा जा सकता था कि अगर उसके इवज़ यीशु मसीह नई बात यहाँ पर कह देते और उसको रद्द कर देते। एक बात, 2 बातें हो गई। वहाँ पर दोनों बातों का थीम जो है वो सेम है, और वो क्या है कि यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है, ये बात हो रही है वहाँ पे। तो दूसरी बात जो है, तीसरी बात जो है उसमें वो ये है कि जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि यीशु मसीह मुजस्सम खुदा थे, तो बतौर खुदा शरीयत जब दी थी तो इसी खुदा ने दी थी मूसा को, जलती हुई झाड़ी में नज़र आया था। तो आगे भी आकर वो अपने कलाम को अगर रीडिफ़ाइन करता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप हमारे तसव्वुर को तो समझें पहले। हकीम साहब से 3 मसीही अपने सवालात करेंगे। मेरा नाम ज़रक नियामत है और अगर इजाज़त हो तो 2 सवाल करना चाहूँगा। सौखे पूछें। हकीम साहब ने ये कहा कि अंबिया एक सवाल पूछना एक ही पूछ अच्छा एक ही पूछ
मैथ्यू साहब ने जो हवाला कुरान से दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हजूर के जो अगले पिछले गुनाह हैं उनकी माफ़ी के लिए कहा गया है। तो आपने कहा था कि ये जो गुनाह है ना, ये असल में आप इसका तर्जमा गुनाह कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब जो है वो गुनाह नहीं होता। ये रिकॉर्डेड है, आपने कहा था। दूसरी बात आपने कहा है कि अंबिया से ख़ता होते हैं, गुनाह नहीं होते। और उसकी मिसाल आपके ये वर्ड्स थे कि उनसे भूल हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि आदम को कितने हुक्म दिए गए थे जिनकी सबब वो भूल गए थे? अगर कोई 10, 12 या कोई 613 दिए होते, उनमें से एक भूल जाता तो समझ आती। ये मंतकी तौर पर समझ नहीं आता। और एक हदीस में भी लिखा हुआ है कि अम्मा हवा अगर ख़यानत ना करती तो किसी औरत से ख़यानत ना होती। तो क्या उन्होंने ख़यानत की थी जिसकी वजह से आदम को वो जो हुक्म था वो भूल गया था? ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ। नहीं, आप सवाल पूछिएगा बाकायदा। अच्छा भाई, बात ये है कि इन्होंने कहा कि आपने कहा ये गुनाह नहीं है, ख़ता है। हाँ, पहले तो बात आप पता नहीं, आपने कहा था सवाल एक ही पूछूंगा, 2 तो इनखा रहा है अपने पूछे हैं सवाल जो है, ठीक है। अच्छा, कुरान करीम में है कि वस्तगफिर लिज़म्बिक। मैंने अर्ज़ किया है, मैंने 5 लुगात का हवाला दिया, जो अरबी की लुगत हैं उनमें एक मसीही लुगत का भी मैंने हवाला दिया। और सबसे मुस्तनद जो है वो कामूस है, वो उनकी है जो अरब की लिखी हुई है, वो अरब के मसीहियों की लिखी हुई है, क्योंकि वो पुराने जो है ना इस ज़बान के जानने वाले, ठीक है। फिर लिसानुल अरब है। सब में इसका जो एक होता है हकीकी माना, एक होता है मजाजी माना, ठीक है। तो हकीकी माना और मजाजी माना उस वक़्त लिया जाता है कि जब वह उसके क्राइन देख के, सियाको सबाक देख के हम तयन करते हैं कि इसका जी जो है ना यहाँ मानी हम क्या करेंगे। तो मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है तवफ़ा, इसका असल मानी है वफ़ा, पूरा करना, ठीक है जी। मगर इसका मानी हम मौत भी करते हैं, ये हम सियाको सबाक से तयन करेंगे कि यहाँ हम जनाब मौत करना है या इसका असल माना करना है। तो इसी तरह जो कुरान करीम में मैंने आपको मिसाल दी थी भाई, मिसाल दी थी कि कुरान करीम ने कहा है कि वस्तगफिर लिज़म्बिक, यह ज़म्ब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ना, तो गुनाह के लिए कुरान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने आपको बताया था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इन तज तानिबु कबाइरल इस्म, इस्म जो है ये गुनाह को कहते हैं। भूल, मैं उस पर आ रहा हूँ। अच्छा, ये गुनाह का और ज़म्ब का फ़र्क आपको मालूम हो गया। अब हो गई जनाब भूल। भूल ये होता है कि औलाद आदम जो है वो नसियान के ज़हन से ही वो बात निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? ये कभी बहुत खुशी हो इंसान को तब भी निकल जाती है, कभी इंसान को बड़ा गम हो तो तब भी निकल जाती है। इसके कई है। और जो बात है हज़रत आदम की, तो मेरे भाई ये तो बाइबल में भी लिखा है कि आदम ने गुनाह नहीं किया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई थी, ठीक है। तो कुरान ने ये बात बयान की है कि आदम भूल गया, ठीक है। उसका ये मकसद नहीं था कि वो खुदा के जो है ना वो हुक्म की अदूली करे, इरादतन उसका ये इरादा नहीं था। उस वक्त उसको एक हुक्म हो या 10 हुक्म हो, भूलना होता है भाई। ये क्या बात है? ये तो कोई ऐसी बात जी। आप सबको सलाम। अच्छा, मेरा हकीम साहब से सवाल ये है, ये एहसनुल बयान है, कुरान शरीफ का ये तर्जुमा है, सऊदी अरब से छप के आया है और ये हमारी पूरी क्लास को गिफ्ट मिला था इदारा हकूक़ुल नास की तरफ से। अब इसमें जो तीनों हवाले हैं पैगम्बर इस्लाम के मुतल्लिक़ कि जहाँ पे अल्लाह बार बार उनको कह रहे हैं कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, बल्कि हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। तो इस पे गुनहगार यानी कि गुनाहों का लफ्ज़ लिखा है, कोई ख़ताकार नहीं लिखा जिस तरह ये कह रहे हैं। तो अब ये तर्जुमा गलत है बकौल इनके। अब ये बता दें कि ये दुरुस्त है या नहीं। यानी कि हमारी तो पूरी क्लास के पास है, काफ़ी लोगों के पास है और इदारे की तरफ से मिला था। अब हम इसे रखें या ना उनको वापस कर दें? हाँ, और इसकी आपको अगर ये गलत है तो आपको मजम्मत भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही वाला भी।
जी जी और भाई ये जी सऊदीया तो छपी थी ना मेरे खालू दी लिखी हुई हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ मेरे खालू हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। हाँ जी अब सुन ले मेरी बात, गलत नहीं लिख लें, आप सुन ले ना, मैं आपको बताता हूँ यार, मेरी बात सुने मैथ्यू साहब, ये मस्करा पुना ना किया करें आप जो ना, आप बार बार कहते जे ना हबल हबल हबल, मैं मजाक नहीं ना उड़ाता आपकी तरह, अब ये हबल नहीं है भाई, हुबल है। अब मस्करा पुना ना किया करें, इल्मी रवैया आप अपनाया करें। मैंने आपसे ये कहा था, सुन ले ना, सुन ले ना यार, सुन ले आप। मैंने अर्ज़ ये किया था, मैंने अर्ज़ किया था कि आप हमसे पूछे ना कि ज़ंब तर्जमा इसका क्यों किया गया गुनाह, तो हमारे यहाँ अम्बिया की वो बातें, मैंने मिसालें दी थी आपको, हम अम्बिया की वो बातें, कोई एक कुरान से कोई एक हदीस से आप हमें वाला दे दे कि किसी नबी ने बुत पूजा हो, किसी नबी ने ज़ना किया हो, किसी नबी ने शराब पी हो, कुरान से हदीस से। हमने आपको बताया था कि अम्बिया का जो गुनाह है वो क्या है, वो भूल चूक से उसके अंदर उनका इरादा नहीं होता कि उसने ये गुनाह करना है। मूसा की मिसाल दी थी कि मूसा ने किब्ती को मुक्का मारा, वो मर गया। अब मूसा का इरादा ये नहीं था कि उसको कत्ल कर दे, ये एक इत्फाक था, तो उनको भी गुनाह कहा जाता है, मगर वो इरादी तन गुनाह नहीं है, जो लुगत के एतबार से उसका माना गुनाह नहीं है। मैंने आपको 5 हवाले लुगत के दिए हैं और मेरा चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ 1 महीने तक का आपको टाइम देता हूँ, आप अरबे लुगत से इसका मानी ये साबित कर दें तो फिर भी आप सच्चे भाई, ठीक है। इन्होंने ये तर्जमा किया है तो वो इस्लामी इस्तिलाह के मुताबिक किया है। इस्लामी इस्तिलाह के मुताबिक ये है कि अम्बिया से ये जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो उसको गुनाह कहा गया है। वो तो मुसलमान तो सारे ही जानते हैं, किसी भी मुसलमान से पूछे कि अम्बिया का गुनाह क्या है तो वो आपको बता देगा कि जो उनसे भूल चूक से हो जाता है, तो वो असल में गुनाह नहीं होता, ख़ता होती है। जैसे वो रिजवान साहब हाँ वो इसी तरह की, ताकि क्लैरिटी हो जाए। अच्छा हकीम साहब ने एक तो कह रहे हैं कि ये जो गुनाह है ही नहीं है, फिर दूसरा साथ में ये भी कह रहे हैं कि असल में इस्लामी इस्तिलाह ये है कि इसको गुनाह कहते हैं, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात क्या है, आप गुनाह कहते क्यों अगर ये गुनाह है ही नहीं है तो। और दूसरी बात ये कि इन्होंने हज़रत मूसा का हवाला दिया, भाई ये कैसी खता थी, बंदा ही मार दिया। आप अदालत में जाके बोलो हाँ कि मुझसे गलती से जी बंदा मर गया, गलती हो गई जी, खता हो गई, और देख लें फिर आपका क्या हाल करते हैं। भाई मेरे भाई मसला ये है कि आपको अपनी बाइबल का भी इल्म नहीं है। बाइबल पढ़ के देख लें, सुन लें, मैं कुरान से भी देता हूँ, कुरान से भी मुझे जवाब देना यार, ज़बान ते ना फड़ो की हो गया तो नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं किया, मैं तो उन्होंने किया। अच्छा मेरा मुँह मैं उधर देख रहा हूँ कि आप पीछे से बोले, मैं समझा ये बोल रहे, अच्छा वो बोले, सुन ले आप, सुन ले भाई, बाइबल में भी जो इरादी कत्ल है उसकी सज़ा और है, और जो खता के तौर पर कत्ल है उसकी सज़ा और है, क्योंकि वो इरादतन कत्ल नहीं है, वो गुनाह नहीं है, वो खता है भाई। बाइबल में भी ऐसा है, ठीक है। तो कुरान करीम में भी जनाब वाला ऐसा है कि एक गुनाह वो होता है कि आपका इरादा हो मैंने ये गुनाह करना है। मिसाल के तौर पे एक बंदा इरादा करता है कि मैंने खुदकशी करनी है, वो इरादा करके जहर खा लेता है, वो है खुदकशी, उसने गुनाह किया। अच्छा एक बंदा है उसे पता नहीं है, यहाँ जनाब वो कोई चीज़ पड़ी हुई, दूध पड़ा हो, उसमें गलती से कुछ छिपकली मिल गई या किसी ने जहर मिला दिया, उस बंदे ने दूध समझ के पिया है, तो वो उसका इरादा खुदकशी का तो नहीं था ना, उसने तो दूध समझ के पिया है। तो यही बात है, गुनाह और ख़ता में आपको फ़र्क करना होगा, ठीक है। ये है मिसाल के तौर पे एक बंदा शिकार कर रहा है, उसने अपना निशाना लगाया है, वो शिकार करने लगा हिरन का, उसने निशाना लगाया हिरन को, अचानक एक आदमी आ जाता है सामने से, और उस आदमी को नहीं पता कि वहाँ किसी ने गन तानी हुई है, बंदे ने मारा हिरन को, अचानक आदमी आ गया, उसको लग गया, ये खता है भाई। गुनाह वो होता है जिसका आप इरादा करेंगे। तो अच्छा आपने ये कहा था जी कन्फ्यूजन है आप में, फिर उसको गुनाह कहते क्यों है, मैंने ये नहीं कहा कि जनाब उसको जो ना गुनाह कहते हैं, ये कन्फ्यूजन है। सुन ले मेरी बात, मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि इस्लामी इस्तिलाह से तमाम मुसलमान वाकिफ़ हैं और वो जानते हैं कि अम्बिया जो हैं वो मासूम होते हैं गुनाहों से। इसकी मैंने आपको चैलेंज ये दिया है, किसी एक नबी का कुरान से हदीस से
कोई एक ऐसा गुनाह साबित कर दें, जना किया हो, कत्ल किया हो, चोरी की हो, उसने शराब पी हो, उसने खुदा के कलाम में तहरीफ की हो, ऐसा कोई एक साबित आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ख़ता होती है अंबिया के बारे में, उसको इस्तिलाही मानों में गुनाह कहा गया है। हकीकी और इस्तिलाह का फ़र्क आप नहीं जानते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो 5 लुगात आपको दी हैं। नहीं बजाओ, 1 मिनट बजाओ, किस दिए बजाओ 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 यार, सारी तालियां बजाओ जरा, सारे ताली बजाओ। सुन लें जी, सुन लें, नहीं सुन लें जी, इन्होंने तालियां बजवाई हैं। मैंने 5 लुगात का हवाला दिया है और मैं फिर इन्हें चैलेंज करता हूं कि एक मैथ्यू साहब नहीं, पूरी दुनिया मसीहत में से माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो अरब की लुगत से ज़ंब कमानी गुनाह साबित कर दे। और एक चैलेंज और साबित देने लगा, वो भी सुन ले। अरबी की लुगत अपना अरबी की बाइबल में, सुन ले जी, तालियां बुझवाइयाँ, सुन ले। इन्होंने जनाब, मैं कह रहा हूँ कि अरबी बाइबल में ज़ंब का लफ्ज़ बकसरत इस्तेमाल हुआ है और गुनाह के माने में इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं यार, वो गल मैं उन्हें मना कर रहा हूँ कि मजाक नहीं करते, इस्तेहज़ा नहीं करते, ठट्ठा नहीं करते। मैंने भी उन्हें कह दिया। तालियां बजाओ। चलो बजाया ये आखिरी सवाल। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शबाज है। मेरा हकीम साहब से ये सवाल है। एक मिनट 3 सवाल उनसे पूछे गए हैं, इसके बाद आप अगर वो इजाज़त देंगे तो दूसरा सवाल है। ये तीसरा। अच्छा हाँ ठीक है। मेरा नाम शबाज है। मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि इन्होंने बोला कि मसीह के पैरों में जब तेल मला मरियम ने जब मसीह के पैरों पे तेल मला तो वो ज़ना की हालत में आ गए। आपने बाइबल में से, हाँ, शहवत की हालत में आ गया। आपने ये बताना है, बाइबल में से हवाला देना कि हवाला परफेक्ट होना चाहिए कि कहाँ वो शहवत में आए। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि जब उन्होंने तेल मला तो जना की हालत में आ गए। मैंने इनसे पूछा जना की हालत में, कहने लगे नहीं वो शहवत की हालत में। तो ये आपने बाइबल से हवाला देना है। भाई मैंने ये बाइबल के हवाले से नहीं कहा, मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये हमारे तिब की किताबों में ये जनाब इसको कहते हैं तिलाए मुलज़्ज़ज़, कि कीमती इत्र मिला के उससे तिला बनाया जाता है और उसको पाँव के तलवों से लगाया जाता है, जिससे वो जो है ना शहावत देता है। मैंने ये बात की है कि नहीं ये नहीं कहा था। ये मैंने कहा था कि ऐसा करने से ऐसा एक अच्छा बात ये है, सुन ले भाई, मेरा ख्याल है कि जो 4 घंटे बेचारे बैठे हुए ना, उनको हक मिलना चाहिए सवाल करने का। उनको दे दे। अच्छा मैं भला कि गल तो सुनो, मैं ਤੁਹਾਡੇ को इजाजत लेनी है कि इन्होंने कोई 1-2 सवाल और करने की इजाजत दे दी है। चलो ये आज जो हकीम साहब ने कहता है, कौन सा वो दे दिया जवाब उन्होंने। अच्छा सिर्फ एक पूछना सवाल। हकीम साहब ने अपने मुकदमे में ये कहा था कि इंजील मुक़द्दस में जो काना गलील का वाक़या है मैं का, उसमें ग्रीक का वर्ड ओइनोस है और इन्होंने अरबी बाइबल भी पढ़ी है, उसमें लफ्ज़ खमर है। लिहाजा आपने ये बताया कि खमर चूँकि उससे खुमार पैदा होता है, नशा हो जाता है, तो कुरान मजीद में भी जहाँ पे ज़िक्र है कि आसमान पर अल्लाह ताला शराब पिलाएंगे, वहाँ खमर का लफ्ज़ है। तो यसुम मसीह ने जो मैं बनाई थी वो किसी सोर्स से पैदा नहीं थी की थी। वो सोर्स जो है वो खुदा जानता है, उन्होंने पानी को मैं में तब्दील कर दिया था। तो जो अल्लाह ताला पिलाएंगे आसमान पर, आप क्यों कहते हैं कि उसमें नशा नहीं होगा, हालांकि खमर ही लफ्ज़ है। हाँ, बात ये है कि जब आपने उसको देखना है ना, तो फिर आप देखें कुरान करीम को। कुरान करीम में उसकी वजाहत मौजूद है कि वो शराब तहूर है और उसके पीने से ना आदमी बहकेगा और ना उस पर नशा आएगा। ये वजाहत कुरान करीम में मौजूद है भाई। तो आप क्यों हमें ज़बरदस्ती मनवाना चाह रहे हैं? जब कुरान करीम में ये वजाहत मौजूद है तो भाई हम वही लेंगे ना। आप ज़ाती तौर पे कहें कि नहीं वो ऐसी है वो ऐसी है, तो वो आपकी ज़ाती है। कुरान के मतन में मौजूद है, हम तर्जमा नहीं कर रहे, तफसीर नहीं कर रहे, कुछ तशरीह नहीं कर रहे, ठीक है। ये कुरान करीम के मतन में ये बात मौजूद है कि वो पीने से ना आदमी को नशा होगा, ना हज़ियान बकेगा, ना ऐसी बातें होंगी, इसलिए उसको शराब तहूर का नाम दिया गया। मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ अरबी में, मैंने कहा था कुल तराजुम जो है ना,
अंग्रेज़ी तराजम में वाइन है, अरबी तराजम में खमर है, और जो ग्रीक है उसके अंदर जो मैंने बताया था कि उसके अंदर ओएनोस है। तो मैंने तो कहा था कि सारे तराजम में शराब ही आ रहा है, तो ये मैंने जनाब कहा था, वो आप देख लें जी। यार पता है क्या, 12 बज गए, बड़ी दूर से आए हैं वो, उन्होंने वापस भी जाना है, खाने का इंतज़ाम भी तो जो है ना उनका होएगा। बहुत माज़रत चाहते हैं हकीम साहब आपसे। हकीम साहब बहुत माज़रत चाहेंगे आपसे। असल में आपने कहा था 4 घंटे बैठे, हम भी आपके दीदार के लिए 6 बजे से वेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड भी हो ताकि उसका आंसर भी मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। असल में ओके, मेरा नाम याशर है। मेरा क्वेश्चन उससे पहले एक एडवाइस थी, जितने भी सिर्फ एक लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश। मैं 6 बजे से बैठा हूँ, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था, और मुझे जब बोलने का मौका मिला है, ये कटिंग कर दीजिएगा ठीक है। मेरा नाम याशिर है, और मेरी एडवाइस ये थी, जब कुरान करीम से तर्जमा देखा गया तो वहाँ पे गुनाह था, और हम तर्जमे को नहीं मान रहे हकीम साहब के अकॉर्डिंगली। लेकिन जब बाइबल को देखा जा रहा है तो बाइबल को तर्जमे में देखा जा रहा है। हकीम साहब को ये एडवाइस है कि नेक्स्ट टाइम आपके जितने भी एतराज़ होंगे, आप उसको जो ओरिजिनल उसकी लैंग्वेज है उसमें पढ़ के आइएगा और उसमें आगे रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि हकीम साहब आपकी शादी हुई होगी, और जब आप अपनी बीवी के पास जाते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो आप नापाक तो हुए होंगे। अगर नापाक हुए हैं तो हर वो इंसान जिसने इस दुनिया में शादी की है, क्योंकि मसीहत के अकॉर्डिंगली हम जब पाक नकाह की रस्म में चले जाते हैं तो हम अपनी बीवी के साथ जब हम बिस्तरी करते हैं तो हम नापाक नहीं होते, लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंगली नापाक होते हैं। मैंने भी उनसे पूछा, उन्होंने सर हिलाया कि होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे जी उन्होंने आगे से सर हिलाया कि जी हाँ जी होते हैं जी, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में है, जब उन्होंने शादी भी की है तो इस्लाम के अकॉर्डिंगली वो नापाक होते हैं। तो इसका मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की होगी, वो भी उन्होंने हम बिस्तरी की होगी, तो वो भी नापाक हुए होंगे। ज़रा इस बात की वजाहत कीजिएगा। अच्छा, पहले तो जो आपने मुझे मशवरा दिया है ना कि आप असल ज़ुबान में आया करें, आप पता नहीं सोए हुए थे, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई तर्जमे की खामी है। सुन ले, नहीं मजाक नहीं किया मैंने सोया ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, एडवाइस। हाँ एक मिनट, ਹੈਗਾ ਤਮਸਕਰ ਹੀ ਹੈ। हाँ ठीक है। अच्छा चले, इन्होंने कहा जी जा आप असल मतन पढ़ के आया करो, तो भाई मैंने असल मतन ही आपको बताया, तर्जुमों में खामी होती है। जब दूसरी ज़बानों में कुछ तर्जमा करता है ना तो तर्जुमों में खामियाँ हुआ करती हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ज़ंब का मानी गुनाह नहीं होता, ये तर्जमा की खामी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ था वो आपके जो आपने सलाह दिया, मशवरा दिया। अब जनाब आपने जो सवाल किया है कि जब आदमी करता है अपनी बीवी के साथ मिलता है तो क्या आदमी नापाक नहीं होता? और मेरे भाई बात सुनो, हम जो वो होती है ज़ाहरी नापाकी होती है कि हमारे बदन के ऊपर एक गंदगी लगी है, उसके लिए हमें हुक्म दिया गया बाद में गुस्ल करना, उसका वज़ू करना। ये एक ज़ाहरी वही गंदगी है। गुनाह जो होता है वो इससे चीज़ दीगर है, भाई वो गुनाह नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं कि जो फितरतन इंसान के साथ जो है ना लगा दी गई हैं। इसीलिए वो जो हदीस ये पेश कर रहे थे, तमाम बनी आदम ख़ताकार हैं, तो इन्हीं इसी मानों में कहा गया, क्योंकि इन्हें पेशाब भी आता है, पखाना भी आता है, वो भी इन्हें नापाक करता है, बीवी के पास जाता है वो भी इन्हें नापाक करता है। इसीलिए कहा गया तमाम औलाद आदम ख़ताकार है, गुनाहगार नहीं। ख़ता और गुनाह में फ़र्क समझिए। ये वो चीज़ें हैं जिस पे इंसान का इख्तियार ही नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये ख़ताओं में शुमार होता है जी, नापाकी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये ज़रा फिनिश कर लें जी। अच्छा जी, वैसे पूछ लें इनके बाद में आप अभी सेशन ख़त्म कर दें। अच्छा जी, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का इस वक्त के लिए जो उसने दिया। हमने बड़े सब्र व तहम्मुल से इस प्रोग्राम को सुना, हमने अपने सवालात किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कन्फ्यूजन या वो बातें जो इस मज़मून को लेके बहुत से लोगों के जहनों में थी, इस मुनाजरे की वजह से वो जो डाउट्स थे या वो जो चीज़ें थी वो क्लियर होंगी।
اور آپ سننے والے ضرور دونوں فریقین کے مقدمے، ان کے جو دلائل اور جو انہوں نے ریبرٹلز اور جو اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس اور پھر سوالوں کے جوابات دیے. خدا اس جو نشست ہے اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا، اور آپ کے جو ڈاؤٹس یا جو کوسچنز تھے اس ٹاپک کو لے کے وہ اس ڈیبیٹ کے وسیلہ سے جو ہے دور ہوں گے. اور میں اس جو تقریب ہے اس کا اختتام کرتا ہوں اور سارا عزت اور جلال خدا یسوع کے نام کو دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ کی وجہ سے برکت پائیں گے. شکریہ.